Hello and welcome back to Sportswala. So we are here with chapter number 4 today, Physical Education and Sports for CWSM. So this chapter content I will show you. So the content of these chapters are promoting organization which are promoting disability sports, that is Special Olympic, Paralympic, Deaf Olympics. Then concept and classification of divisioning in sports. Then inclusion, its need and implementation. Then we have advantage of physical activities for children with special needs. And at last we have strategies to make physical activities accessible for children with special needs. So these are the topics which we are going to cover in this chapter. Now if we come on disability federal law, it defines the disability is any person who has a physical or mental impairment, कोई भी इंसान जिसको physical और mental impairment होती है, which substantially limit its one or more major life activity, किसी भी एक major life activity में या ज़्यादा life activity में उनको problem होती है किसी काम को करने में, तो that is termed as disability. Now if you come on the meaning of disability or disorder, disability I have already explained. It is mostly about the body parts. Disability is often necessary body parts, but when it come to disorder is the disruption in cost to the normal function of a person, that is due to the mental competency. Where there is a problem in mental competency, that is termed as disorder. Anxiety is the disorder, psychologically disorder is there, ADHD, SPD is there. But when you talk about disability, it's partial disability or complete disability. So these are the types of disability. If you come on Paralympic movement, so Paralympic movement, the first time it was held in Rome in 1960, and this is again an MCQ question which may come in the exam. And MCQ question, it's 1960 first Paralympic was held, and more than 400 athletes have taken part from 23 countries. And first Winter Paralympic Games were held in 1976, that also in Sweden. Then the games nowadays are the second largest sporting event in the world, and since the Summer Olympic Games of Seoul in 1988 and after the Winter Olympic Games in 1992, both the IPC and IOC, IPC International Paralympic Committee and IOC International Olympic Committee, they decided that the venue of the that Olympic and the Paralympic will be same. So from that year itself, the venue was same for all the games. Now coming on to the movement, the Paralympic movement. So Paralympic, the symbol is spirit in motion. Its motto is spirit in motion. Symbol, you can see this image. This image is of a Paralympic symbol is there, where there is three colors, red, blue and green. Colors are in the shape of an agito, the Latin word which means I move. Agito, it means move. Three agito circle a center point symbolizing athletes coming from all the parts of the globes. Now how the athletes are classified in Paralympics. So IPC established 10 disability categories, 10 disability categories बनाई गई है, उनको उसके हिसाब से according to their impairment level they are categorized. पैरालंपिक्स में 22 स्पोर्ट्स एंड विंटर गेम्स में 5 स्पोर्ट्स होती है, और फिर हर स्पोर्ट्स के डिफरेंट अलग अलग इवेंट्स भी होते हैं. Coming on to Special Olympic Bharat. Special Olympic is a global organization that serve athletes with intellectual disability. So Paralympic जैसा physical disability के लिए था, वैसे Special Olympic जो है सो mental disability के लिए होता है. It was started by Eunice Kennedy Rivers, sister of Kennedy, the former president of USA. Special Olympic क्या होता है? Special Olympic is their aim is to change the life of children and adults with an intellectual disability with the help of sports को जरिया बनाकर उनकी लाइफ को चेंज करना इज द मेन मोटो. कमिंग टू डेफ ओलंपिक जो है सो ओनली फॉर द पीपल हु आर डेफ. पहले इसको इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ बोला जाता था, और अब ये भी एक मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट हो गया है, और इसमें जो है सो इसमें साउंड्स की कोई यूज नहीं होती है, सच एज पिस्टॉल्स, बुलहॉर्न, कमांड और रेफरी विसल, ये सब का यूज नहीं होता है. द गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कमिटी इंटरनेशनल डेफ स्पोर्ट्स, और इसको जो है सो अब इसको चेंज कर दिया गया द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ सिंस द फर्स्ट इवेंट इन 1924. तो इसको जो स्टैंडर्ड जो इसको कमिटी इसको जो रन करती है, दैट इज इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ. Then coming on to the concept of classification and divisioning. कैसे होता है classification and divisioning? Classification for Paralympic sports generally has 3 or 4 स्टेप, 3 या 4 स्टेप होती है, जिसमें मेडिकल असेसमेंट होता है. 2 बार मेडिकल असेसमेंट हो सकता है. एक बार जो है सो प्रैक्टिस करते वक्त उनको ऑब्जर्व किया जाता है, और दूसरा टाइम उनको कॉम्पिटिशन के वक्त ऑब्जर्व किया जाता है. बहुत सारे लोग होते हैं इसके अंदर, जिसमें इंडिविजुअल क्लासीफायर्स है, मेडिकल क्लासीफायर है, टेक्निकल क्लासीफायर्स होते हैं, चीफ क्लासीफायर रहे, इन सब के एक हेड होते हैं, और ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं. क्लासिफिकेशन पैनल बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है कि उनको किस तरीके के क्लासिफिकेशन में डालना है, किस तरीके के इम्पेयरमेंट में डालना है.
सो क्लासिफिकेशन कैसे होती है, कुछ कुछ पैरामीटर्स है जिसके ऊपर इसको क्लासीफाई किया, जिसमें सबसे पहले फिजिकल इंपेयरमेंट है। 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल इंपेयरमेंट होती है, जिसमें कि इम्पेयर्ड मसल पावर है, अगर किसी के मसल पावर कम है तो उनकी एक कैटेगरी होती है, जिसमें कि लिम्ब में कम पावर होना या लोअर हाफ ऑफ द बॉडी इज रिड्यूस्ड, एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम हो गई। देन उसके बाद इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, अगर रेंज ऑफ मूवमेंट इन वन और मोर जॉइंट इज रिड्यूस, जितना मूवमेंट होनी चाहिए वो रिड्यूस हो जाती है किसी के अंदर, तो उसकी एक कैटेगरी हो जाती है। देन लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डेफिशिएंसी, किसी की लिम्ब भी ना हो और या फिर हो तो जो है सो आधा हो तो भी उसको जो है सो एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। देन लेग लेंथ डिफरेंस, कुछ लोगों का एक पाँव छोटा और एक पाँव बड़ा होता है, उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई जाती है। शॉर्ट स्ट्रेचर, इसकी जब बौने लोग होते हैं जिनकी हाइट छोटी रह जाती है, उन लोगों के लिए जो है सो अलग से कैटेगरी बनाई जाती है। जिनकी स्टैंडिंग हाइट रिड्यूस हो जाती है उन लोगों के लिए कैटेगरी अलग से बनाई जाती है। देन हाइपरटोनिया इज मार्क्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज इन मसल टेंशन, अगर किसी की मसल टेंशन में एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाती है, एबिलिटी ऑफ मसल टू स्ट्रेच कम हो जाती है, तो उनकी कैटेगरी अलग से बनाई जाती है। देन एटेक्सिया होती है इंपेयरमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मसल मूवमेंट, जब मसल मूवमेंट में लैक हो जाती है और कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है, दैट इज टर्म एटेक्सिया, उनके लिए अलग कैटेगरी। देन एथेरोसिस इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय अनबैलेंस्ड इनवॉलंटरी मूवमेंट एंड डिफिकल्ट मेंटेनिंग अ सिमेट्रिकल पोस्चर, जब वो मोस्टली व्हील चेयर में आ गए या फिर चेयर पे ही बैठना पड़ता है उनको, तो ऐसे लोगों के लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई जाती है। अगर स्पेशल ओलंपिक की डिविजनिंग की बात करें तो उसमें एज वाइज जो है सो डिविजनिंग होता है और जेंडर वाइज मेल फीमेल अलग, और उसमें टीम स्पोर्ट्स के लिए 15 एंड अंडर वाले एक साथ खेलते हैं, 16 21 वाले 21 ईयर्स वाले एक साथ, और 22 एंड अबव वाले एक साथ खेलते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, 8 to 11 ईयर्स की अलग कैटेगरी, 12 to 15 ईयर्स की कैटेगरी होती है, 16 to 21 ईयर्स, 22 to 39 ईयर्स, देन 30 एंड अबव ईयर्स के लिए कैटेगरी बनाई जाती है। जेंडर में जो है सेकंड स्टेप पे एथलीट्स आर ग्रुप्ड एज पर जेंडर, इन सम सर्कमस्टेंस जेंडर कैन बी कंबाइंड टू, कुछ सर्कमस्टेंस में जो है सो उनको कंबाइन भी कर सकते हैं। एंड एबिलिटी, फाइनली एथलीट्स इन स्पेशल ओलंपिक आर ग्राउंड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एबिलिटीज स्कोर विच आर रिकॉर्डेड बाय कमिटी थ्रू प्रीलिमिनरी एंड ऑन साइट इवेंट्स, उनकी फिर एबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से भी जो है सो उनको कैटेगराइज किया जाता है। Next topic is inclusion and its implementation. Inclusion in education is an approach to educate students with special educational needs under the inclusion model. Inclusive जो आपको वर्ड सुनाई दे रहा है, include मतलब की होता है जब भी एक जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको नॉर्मल स्टूडेंट के साथ बिठाकर सेम चीज़ें सिखाई जाती है, सेम क्लास दिया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन इज under this model, students with special needs spend most or all of their time with non-special needs or classroom to separate student with disability from student without disability, उनको साथ में लगा के कम क्लास करवाई जाती है, that is termed as इंक्लूसिव क्लासेस। ना इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस क्यों है? नीड एंड इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ताकि जो है सो वो लोग अपने आप को सोसाइटी से अलग ना समझे, वो अपने आप को सोसाइटी के साथ समझे। एक जनरल एजुकेशन क्लासरूम में क्या होता है, बहुत सारे डाइवर्स स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स उनकी वैल्यू को रियलाइज करता है, तो अगर वो भी स्टूडेंट साथ में क्लास लेंगे तो देयर वैल्यूज विल ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड, दे विल ऑल्सो लर्न समथिंग डिफरेंट, देयर रिसर्चेस जो है सो वो भी अच्छा कर पाएंगे। इंडिविजुअल गोल डिफरेंट हो सकता है लेकिन जब वो साथ में रहेंगे तो दे विल लर्न लॉट मेनी थिंग्स। सम ऑफ दिस बेनिफिट इंक्लूड फ्रेंडशिप है, सोशल स्किल्स सीखेंगे, पर्सनल प्रिंसिपल्स इंप्रूव होगा, कंफर्ट लेवल उनका इंप्रूव हो जाएगा, एंड केयरिंग लेवल बढ़ जाएगा, क्लासरूम इन्वायरमेंट उनको समझ में आएगी। देन उसके बाद अगर नीड की बात करें, क्यों नीड है? फॉर सेल्फ एस्टीम, दे विल ऑल्सो फील इंक्लूडेड, उनको अपने आप को सोसाइटी से बाहर नहीं समझेंगे। फॉर बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, अगर जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनको हम नॉर्मल स्टूडेंट के साथ बिठाए तो दे विल improve on their सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज वो उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ रहेंगे। देन ग्रेटर सेंसिटिविटी, दे विल बी एबल टू बी सेंसिबल इन लाइफ, अपने लाइफ को प्रोग्रेस अच्छा कर पाएंगे। देन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, देन दे विल बी एबल टू एक्चुअली नो कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या क्या था, क्या वीकनेस है मेरे अंदर, व्हेन दे विल compete with the normal students। फॉर बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो जो है सो अपने बिलोंगिंगनेस, अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे, क्या उनका है क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें उनके साथ हो रही है क्या नहीं हो रही है, दे विल बी एबल टू गेट टुगेदर विद दैट, और अपने बिलोंगिंगनेस को उन लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देन हायर एकेडमिक अचीवमेंट, देयर आर चांसेस कि कुछ लोग उसमें से भी एक्सेल हो जाए, उनका एकेडमिक पार्ट अच्छा हो जाए। देन एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अगर हम इन बच्चों को स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं तो क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या फायदा है उनके अंदर? सबसे पहला है फिजिकल इंप्रूवमेंट, दे विल इंप्रूव फिजिकली बिकॉज रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, दे विल बी engaged in physical activity, तो देयर फिजिकल परफॉर्मेंस विल इंक्रीज, देयर बॉडी विल इंक्रीज, देयर बॉडी की जो साइज है
शेप है दैट विल बी बेटर। मेंटल इंप्रूवमेंट इन कंडीशन एंड वेलबींग, जब भी आप फिजिकली इंप्रूव हो धीरे धीरे क्या होगा, आपका मेंटल कंडीशन भी ठीक होगा, आप कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, आप मेंटली जो है सो अलर्ट हो जाओगे वहाँ पे। देन बिहेवियर इंप्रूवमेंट इन अटेंशन, रिलेशनशिप एंड एकेडमिक्स, वो जो है सो बिहेवियर वाइज भी अच्छे बन जाएंगे, अटेंशन लेवल बढ़ जाएगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, एकेडमिक पार्ट भी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देन सेल्फ एस्टीम, लाइक ओलंपिक एंड पैरालंपिक, ओलंपिक में वो लोग खेलते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है, सेम एज पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स में अगर कोई जीतता है तो उनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। तो मे बी दे मे मूव ऑन टू सम अदर लेवल, दे मे ऑल्सो इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, वो अपने आप को जो है सो एक सोसाइटी के सामने अच्छे इंसान की तरह खड़ा कर सकते हैं। देयर सेल्फ एस्टीम विल इंक्रीज। देन एज ऑन सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलेंगे तो उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा एंड दे विल बी एबल टू सोशलाइज देमसेल्फ। देन देयर आर चांसेस कि उनकी हेल्थ बेनिफिट्स अच्छे हो, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी हमेशा से ही हेल्थ पे असर करती है और हेल्थ को अच्छा इंप्रूव करती है। देन कॉग्निटिव बेनिफिट, वो अपने आप को मेंटली भी स्ट्रांग बना सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। देन क्या क्या चीज़ें चाहिए, अगर मैं इन बच्चों को स्पोर्ट्स में लेके आऊँ तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन से स्ट्रेटजीज यूज़ करना चाहिए जिससे कि मैं इन बच्चों को स्पोर्ट्स में ला सकूं। सबसे पहला हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सो दैट यू विल बी एबल टू नो कि उन बच्चों के को क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको किस कैटेगरी में रखना है, उनको किस वे में सिखाना है। देन कमिंग ऑन टू इंडिविजुअल नीड्स, हर इंसान की अलग अलग नीड होती है, तो आपको हर स्पेशल चाइल्ड की नीड का पता होना चाहिए, सो दैट यू विल बी एबल टू टीच देम इन दैट वे और ट्रेन देम इन अकॉर्डिंग टू दैट। देन वी हैव स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, अगर उनको कोई डिसेबिलिटी है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके हिसाब से इक्विपमेंट डिजाइन करना चाहिए और वो उन्हीं के साथ खेलना चाहिए। देन प्लेइंग एनवायरनमेंट, ये जो लोग होते हैं दे आर वेरी मच सेंसिबल, उनको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी के लिए जब भी एनवायरनमेंट जो होता है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करवा रहे हो, जहाँ पे आप करवाने वाले हो, जहाँ पे क्लास लेने वाले हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट वहाँ पे और कुछ ऐसा नहीं चल रहा जिनसे उनको सेंसिबली या मेंटली प्रॉब्लम हो। देन प्लेइंग रूल्स, अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी रूल्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। ट्रेनिंग ऑफ एजुकेटर्स, ये जो लोग होते हैं इनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, तो वो जो एजुकेटर्स इनकी क्लास लेने वाली है उनकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। देन एट लास्ट वी हैव सेफ्टी सुपरविजन, हमेशा कोई ना कोई इनके चारों तरफ होना चाहिए जो सेफ्टी के लिए सुपरवाइज कर रहा हो, देख रहा हो कि ये सब लोग ठीक से कुछ कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज देयर मे बी पर्सन हु कांट स्पीक, तो वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर कोई ना कोई चारों तरफ रहेंगे, सेफ्टी सुपरवाइजर की तरह काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक दे विल बी एबल टू टेक अ गुड सर्विलेंस अबव देम, और इस तरीके से वो सबके लिए अच्छा काम कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, दिस वाज चैप्टर नंबर 4, शॉर्ट रिव्यू ऑफ द चैप्टर। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, वीडियो को सुन लीजिए, आपको पूरी चैप्टर समझ में आ जाएगी। इफ एनी डाउट्स डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वाला। थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू, मीट यू।